न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल जिला अस्पताल रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। त्रुटियां पर की गई समीक्षा। मंत्री जिला शासक थे उपस्थित। चैतन्य महाप्रभु की चरण पादुका आसनसोल में कई श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। सिटी टुडे न्यूज खबर संचालन होने से गुमशुदा महिला का मिला पता। परिजनों ने किया सिटी टुडे न्यूज का धन्यवाद। आसनसोल जिला अस्पताल में शनिवार को रोगी कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलाय घटक, जिला शासक एस पुन्नाबुलम, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्रदास समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे। इस बैठक का उद्देश्य अस्पताल से जुड़ी समस्याओं की गहराई से समीक्षा कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। बैठक में नवीन CCU क्रिटिकल केयर यूनिट के सुचारू संचालन पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही अस्पताल में आने वाली अन्य तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। जिला शासक एस पुन्नाबुलम ने बैठक के बाद बताया कि हमारा प्रमुख लक्ष्य अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। सभी समस्याएं सुनी गई हैं और आवश्यक निर्देश तुरंत दिए गए हैं ताकि समाधान जल्द हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि आपसी समन्वय और कार्य में पारदर्शिता बनी रहे तो आसनसोल जिला अस्पताल भविष्य में और बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा। আমাদের রোগী কল্যাণ সমিতি মিটিং ছিল। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মন্ত্রী স্যার ছিলেন, আমরা সবাই ছিলাম, সিএমও ছিলেন, সুপার ছিলেন। হসপিটালের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হলো। যেমন এখানে আমাদের নতুন CCU মতলব যেটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিল্ডিং হচ্ছে ওটা নিয়ে আলোচনা হলো, ওটা প্রোগ্রেস নিয়ে দেখা হলো। আরও এখানে ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলো। ওখানে চেয়ারম্যান স্যার, মন্ত্রী স্যার ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন কি করতে হবে। এটা আমরা আজকে সবাই ভিজিট করেছি, এখানে এদের সুবিধা অসুবিধাগুলো শুনেছি। ওটা সমাধান করার জন্য অনেক নির্দেশ দিয়েছেন, ওটা ফলো করা হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের রুটিন রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং আজকে আমাদের ছিল। মানে আলোচনা হয় হাসপাতালের সব বিষয় নিয়ে, এখানে আলোচনা হয় যাতে হাসপাতালকে আরও ভালোভাবে কী করে চালানো যায়। অনেক সুবিধা অসুবিধার কথা এখানে বলা হয়। এই রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং ছিলেন। আজকে মেন ইস্যুগুলো ছিল যে আমাদের যে ওই 100 বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক যেটা আছে তার তো কাজ চলছে, তো ওইটা দ্রুত কী করে শেষ করা যায় সেই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো। যে প্রথমে বিল্ডিংটা খুব তাড়াতাড়ি করে কমপ্লিট করতে হবে এবং অন্যান্য আরও যদি কিছু এস্টিমেট লাগে সেগুলো তাড়াতাড়ি করে দ্রুত আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে। মেনলি ওইটাই ছিল যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকটাকে খুব তাড়াতাড়ি করে কাজের কী করে ফিনিশ করা যায়। এছাড়া আরও ইস্যু ছিল, যেমন ডায়ালিসিস ইউনিটটা আমাদের 10 বেডেড হওয়ার কথা, সেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 10 বেডেড করা যায় কিনা সেই নিয়ে। তো সেটা করতে গেলে আমাদের নতুন বিল্ডিং একটা CCU হবে 22 বেডের, যেটাকে হাইব্রিড CCU বলে। সেই কাজটা একটু স্লো চলছে, সেটাকে কী করে দ্রুত করে এখানকার CCUটাকে ট্রান্সফার করে আমরা 10 বেড ওখানে ডায়ালিসিস করতে পারি, সেই নিয়ে আলোচনা হলো। আর মেডিকেল অফিসার যে অ্যানাস্থেটিস্ট একটা ক্রাইসিস ছিল সেটা বলা হলো। আমাদের যে স্ক্যাভেঞ্জারের যেটা ক্রাইসিস আছে সেটা নিয়ে বলা হলো, এটাকে কী করে করা যায়। আমাদের একটা অল্টারনেট জলের সোর্সের কথা বলা হলো। আমাদের তো কর্পোরেশন জল সাপ্লাই দেয়, তো মাঝে মাঝে কোনো কারণে যদি জল সাপ্লাই ওখান থেকে কমে যায় বা কোনো টেকনিক্যাল ফল্ট থাকে তখন আমাদের মুশকিল হয়ে যায় হাসপাতালে। তো সেটা নিয়ে আমাদের সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর একটা পরিকল্পনা চলছে যাতে কিছুটা আমাদের নিজস্ব ওয়াটার সোর্স থাকে। এছাড়া হচ্ছে কি কালাঝরিয়ার একটা পয়েন্ট আমাদের হাসপাতালের সঙ্গে কানেক্ট করার একটা কথাবার্তা চলছে আর কি, সেটা আমরা অগ্রসর হব কর্পোরেশনের সঙ্গে কথা বলে। এবং হচ্ছে গিয়ে আমাদের মেডিসিন যে কিছু আমাদের কিনতে হয় অনেক সময় আমাদের আরকেএস ফান্ড থেকে, সেটা আলোচনা করা হলো ইমার্জেন্সিতে।
তারপরে ক্যান্টিনের টেন্ডারের কথা বলা হলো, আমাদের ক্যান্টিনের তো একটা চলছে, তার টেন্ডার হবে। পুকুর একটা আমাদের আছে, ওটারও একটা আমরা টেন্ডার করব খুব শীঘ্রই, এই আলোচনা হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালে যে সেফটি সিকিউরিটির ব্যাপারটা আছে, সেটাও আমাদেরকে আবার নতুন করে এখানে আমাদের পর্যালোচনা হলো। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पवन धाम से प्रारंभ हुई चैतन्य महाप्रभु की चरण पादुका यात्रा देश के कोने कोने में भक्ति की गंगा बहा रही है। महाप्रभु के प्रेम और करुणा का प्रतीक ये चरण पादुका आज देश भर के लाखों भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रही है। उपभोक्ता सुदीप गोस्वामी ने बताया कि ये पवन यात्रा नवद्वीप से आरंभ हुई है और विभिन्न राज्यों व नगरों में भ्रमण कर रही है। इसी श्रृंखला में शनिवार को ये यात्रा पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित बर्नपुर पहुंची। जैसे ही चरण पादुका बर्नपुर पहुंची, श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। हरिनाम संकीर्तन की गूंज, भक्तों के भाव विभोर चेहरे और आस्था से झुके हुए शीश, हर दृश्य अलौकिक था। इस यात्रा का उद्देश्य केवल दर्शन नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रचार है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी ये चरण पादुका भ्रमण जारी रहेगी, जिससे लाखों श्रद्धालु इस दिव्य अनुभूति का लाभ उठा सके। খুশি মানে কি বলবো, এ তো আমাদের চরম সৌভাগ্য যে আমরা মহাপ্রভুর চরণপদ দর্শন করতে পারলাম, প্রণাম করতে পারলাম। আজ পর্যন্ত মানে চৈতন্য মহাপ্রভু চরণপদ কোনো জায়গায় পৌঁছায়নি, কিন্তু সেটা আজ বার্নপুরে টাউন পূজা কমিটি করেছে। আর সমস্ত ভক্ত, সমস্ত বার্নপুর আসানসোলবাসী, আমরা কি বলবো, ভীষণ আনন্দ আমাদের যে আমাদের এটুকু সৌভাগ্য হলো। আজকে সকাল 7টার সময় প্রভুর চরণ পাদুকা ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দির থেকে বেরিয়েছেন, আর আগামীকাল এখানে ভোগের পর তারপরে আবার নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবেন এখান থেকে। এটা হচ্ছে মহাপ্রভুর যে প্রেম ধর্ম, মহাপ্রভুর যে ভক্তিবাদ, এই ভক্তিবাদের আন্দোলনকে আরও সুদৃঢ় করবার জন্য আমাদের ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দিরের এই প্রচেষ্টা এবং এই শ্রীচরণ পাদুকা যেটি এসছেন সেটি মা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে মহাপ্রভু দিয়ে গেছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু, এবং মা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিজে হাতে এই চরণ পাদুকা সেবা করতেন। এটা থেকে নিয়ে কোন জায়গা থেকে নিয়ে যায়? শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে, একদম নবদ্বীপ থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আগামীকাল বেরিয়ে যাবে। এটা কি সব জায়গায় পরিক্রমা করছে? সব জায়গায়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় একদম 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 বিভিন্ন জায়গায় পরিক্রমা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আগামী 23 তারিখে বৃন্দাবনে যাচ্ছে, বৃন্দাবন এবং দিল্লি এই শ্রীচরণ পাদুকা। এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভক্তরা যাতে দর্শন পান, যারা যেতে পারেন না নবদ্বীপে তাদের উদ্দেশ্যে তারা যাতে প্রভুর চরণ পাদুকা দর্শন পান, এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যে মহাপ্রভুর যে ভক্তিবাদ আন্দোলন, সেই আন্দোলনটা যাতে সুদৃঢ় হয় তার। NTPS थाना अंतर्गत दुर्गापुर पुलिस ने शुक्रवार को 76 किलोग्राम गांजा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों को शुक्रवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इसी क्रम में पांडेश्वर थाना पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए गांजा के साथ साथ हीरोइन की बरामदगी की। इस मामले में तपन मंडल और शेख फिरोज के साथ साथ 2 अन्य आरोपी जगदीश रॉय और एक महिला दिलरुजा बीबी को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार जांच में राहनूर आबिदीन का नाम भी सामने आया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ कहां से लाए गए और इन्हें कहां सप्लाई किया जाना था। इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अपनी जांच और तेज कर दी है। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of
your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई मां कैंटीन योजना समाज के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में मात्र 5 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी और अंडा जैसे आइटम शामिल है। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में 6 मां कैंटीन सक्रिय रूप से कार्यरत है। जमुड़िया, रानीगंज, कुल्टी सहित विभिन्न क्षेत्रों में इन कैंटीनों की स्थापना की गई है। हाल ही में आसनसोल जिला अस्पताल में भी एक मां कैंटीन की शुरुआत की गई, जो खासकर उन मरीजों और उनके परिजनों के लिए लाभकारी है जो दूर दराज से आते हैं और जिनके लिए भोजन की व्यवस्था करना कठिन होता है। आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने बताया, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मात्र 5 रुपए में लोगों को सम्मानजनक, स्वादिष्ट और भरपेट भोजन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। उन्होंने ये भी बताया कि आसनसोल जिला अस्पताल में प्रतिदिन 300 से अधिक लोग इस मां कैंटीन का लाभ ले रहे हैं, जिनमें अधिकांश गरीब और जरूरतमंद लोग शामिल हैं। मां कैंटीन आज सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है, जो भूख मुक्त बंगाल की ओर एक मजबूत कदम है। यहाँ 300 का हम लोग का टारगेट है, लेकिन 300 प्लस माँ कैंटीन में डेली जो पेशेंट पार्टी दूर से आ रहे हैं उन लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यही पश्चिम बंगाल है जहाँ पर इतना सुविधा है। 5 रुपए में गरीबों को डीम, भात, सब्जी मिल जा रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट लोग आ रहे हैं। आसनसोल कॉर्पोरेशन अंदर में ऐसा माँ कैंटीन 6 जगह पर चलता है। जगह में चल रहा है। रानीगंज है, जमुड़िया है, कुल्टी है, आसनसोल है, गुसिक है। ये नया चालू है। सिटी टुडे न्यूज में एक महिला की गुमशुदगी से संबंधित समाचार प्रकाशित होने के कुछ ही घंटों बाद हीरापुर थाना अंतर्गत हीरापुर ग्राम क्षेत्र में उक्त महिला सुकैरा खातून वर्ष 55 सकुशल मिल गई। उनकी सुरक्षित वापसी की खबर से परिवार के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिजनों ने सिटी टुडे न्यूज का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है और कहा है कि इस समाचार के प्रसारण से बड़ी संख्या में लोग सतर्क हुए और महिला की जानकारी मिलने में मदद मिली। परिवार ने सभी मीडिया संस्थानों एवं सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का भी धन्यवाद दिया है, जिनकी वजह से ये महिला अपने घर लौट सकी। गौरतलब है कि सुकैरा खातून लोअर कुमारपुर स्थित मदीना मस्जिद क्षेत्र से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने उन्हें गुलाबी और काली साड़ी में देखा था और अपील की थी कि यदि किसी को उनकी जानकारी हो तो संपर्क करें। सिटी टुडे न्यूज के प्रति लोगों का ये विश्वास और समर्थन हमारी पत्रकारिता को और भी अधिक जवाबदेह और जनहितकारी बनाता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान और आतंकवाद के नाम पर सिर्फ टाई फिस
ठन ठन गोपाल जैसा नाटक कर रही है। देश में आतंकियों को घुसाकर केंद्र सरकार युद्ध का ड्रामा कर रही है, जबकि असल मकसद बंगाल को बदनाम करना है। कृति आजाद ने कहा कि भाजपा बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कहकर राज्य की छवि खराब कर रही है, जबकि असल में खुफिया विभाग की विफलता के चलते देश में आतंकी घुस रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान से युद्ध की नौबत है तो अब तक युद्ध की घोषणा क्यों नहीं की गई? खुफिया एजेंसियों की विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका तीन क्या था, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन था दुर्गापुर का, उसका हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड किया गया था। उसमें बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया तीन को लिया गया था। उसमें अलग अलग जो PSUs हैं उन लोगों ने पैसा भी दिया था। आज बरौनी शुरू हो गया उन तीनों में से, और बरौनी इनको फायदा भी दे रहा है। तो हमने उठाया था कि बरौनी आपने शुरू किया, फायदा दे रहा है, तो दुर्गापुर का और हल्दिया का कब शुरू करेंगे? हल्दिया का जो जमीन था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट का था, शायद वह वापस कर दिया गया है केंद्र सरकार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट को उन्होंने केंद्र सरकार ने वापस कर दिया है। लेकिन यह हमने ₹1 प्रति साल के हिसाब से 1000 एकड़ जमीन दिया है। और हमको यह पता लगा है कि वर्तमान में कोल बेस्ड गैस का 13,000 मेट्रिक टन यहाँ आने वाला है। तो वह हम प्रयास कर रहे हैं कि वो दुर्गापुर फर्टिलाइजर में उसको बनाया जाए, रिवाइव किया जाए। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।